शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पहली बात थैंक्स टू इंद्रपाल जी और अरुण भैया। ये कहना चाहूँगी मैं, पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। ज़रूर मैंने प्रोमो देखा है, पर एक्टर्स का ये काम देख के ऐसा लगा कि मुझे कि इन्होंने 10 पिक्चरें कर ली है। मेरे पीछे लेफ्ट में जो हीरोइन खड़ी है बहुत खूबसूरत है, और आई डोंट नो रागिनी बहुत अच्छा राग आगे देने वाली है फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर जो सेंटर में जो विलेन जो खड़े हैं यहाँ पर, विशाल विशाल रॉक्स इन द मूवी, और विशाल का काम मुझे अच्छा लगा। मेरे राइट में जो टॉल यहाँ पर है रोहित भैया तो कमाल कर दिया। और हमारे स्टड के जूनियर स्टड जो है यहाँ पर राइट में, इन्होंने तो छक्के पे छक्के उड़ा दिए हैं। एंड गुड लुकिंग लाइक फादर लाइक सन। एंड बैक टू अनीता जी, जो ये नाम मुझे बहुत पसंद है। न्यूमरोलॉजी पे नहीं जाऊंगी पर कहते हुए कहूंगी, क्योंकि अनीता नंबर 9 आता है आपका नंबर 9 है, आप रॉक करेंगी और मेरी शुभकामनाएं आपको हमेशा रहेगी। थैंक यू वेरी मच। I'm very excited about my first film, and it was fun shooting the entire film, and got to learn a lot from Milinji as well as a good director and my co-artist as well. So I enjoyed the film thoroughly, and I hope the audience enjoyed as well. Thank you so much. Thank you, definitely. And Adhyan, First of all, I would like to salute Milind ji and Anita ji and Yatin to make such a hard-hitting film. In today's time, being the first-time producer, they could have gone and chosen a very commercial subject and had like 8 songs and stuff like that. But to choose such a subject, I think it's brilliant. And I'm very happy to be a part of such a film where I can get across to the common man and probably give them a message. And for me, people ask me कि आपको क्या लगता है कि फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी? I said I really don't know. And at this very moment of my life, I really don't care about कि. Of course, as an actor, I would want the film makes 40 crores, 50 crores. But in today's time, what's happening in our country, and I was discussing with my father what's happened in Delhi and what's happening in Bombay and all over India with the things happening to the common man and nobody there to help them. And they're not fighting for themselves. And I hope that with this film, after people watch the film, they get up and probably start a movement and do something about it. And as far as working in the film is concerned, it was an amazing experience working with Milind. And I'm being very honest because he's an amazing director to work with. And I'm very fortunate to do my third film with him. Ragini, whom I haven't shared too many scenes with, but I feel she's a brilliant actor, and I think she hopefully will get the debut award next year. And Rohit Bakshi, fantastic actor again debuting, and I hope that he wins the award too next year. I'm being very honest; they've done a brilliant job in the film, and Arun sir, I hope that the film makes 40 crores at the box office. Doesn't mean I don't want the film to make that much money, but I hope that the film is a success. Thank you so much. Hi, good evening. सॉरी मैं माइक ले रही हूँ। अध्यान ने इतने दिल से दिल खोल के कहा है 40 करोड़ पिक्चर कमाए। मैंने कहा बच्चे अपना शेयर तो मांग ले। मांग चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि 40 करोड़ कमा ले, so I get 10 crores out of it. Hi, good evening. First of all, I feel very blessed to be a part of such a hard-hitting movie. And it was great working with Milind sir, definitely. And it was a great experience. And thank you so much, Milind sir, as well as Anita ji, for selecting me for this particular role. It was a great experience, and it was a learning experience though, especially with Milind sir, because the best part about the movie was we hardly used to remember the lines. And in the sense, what happens is we used to improvise a lot. We used to improvise a lot on the sets. So what happens is the performance becomes very natural. It is more of conversation. जब आप मूवी देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि दो भाइयों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, रागिनी और मेरे बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो ओवरऑल बहुत मेहनत से, बहुत लगाव से, बहुत प्यार से ये मूवी बनाई है, एंड आई रियली होप एंड आप सबकी विशेष चाहिए कि ये मूवी बहुत अच्छा करे, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली मैं नाम सुनते बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मैं देहरादून से हूँ और देहरादून के ऊपर देहरादून के नाम पे एक पिक्चर बन रही है. सो डेफिनेटली आई वाज वेरी एक्साइटेड. I saw the promos, and the promos में I could see that this is FRI, and this is that location, that's the monastery that you have in Dehradun. So definitely very exciting, और अपना गांव होता है. डायरी के पन्ने में कैसे लगे, क्या कहेंगे इस पन्ने के बारे में? You know, I think it's a very hard-hitting film, और हमें ज़रूरत है कि ऐसी पिक्चरें बने जो रियल इंसिडेंट
अभी जैसे आप अगर दिल्ली रेप केस ले लें तो अभी इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया गेट पे, एवरीवन्स टुगेदर, सारे न्यूज़ चैनल में सिर्फ यही न्यूज़ हो रहा है. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट वी मेक मूवीज बेस्ड ऑन सच रियल इंसिडेंट्स सो दैट ज़्यादा फोकस ऐसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मुद्दे पे अभी थोड़ा लाइट भी पड़े. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माई ऑडियंस कि मुझे लवली के रूप में इतना प्यार मिला. लोग मुझे जानते, जब भी मैं जाती हूँ लवली इज़ कमिंग एंड ऑल दैट. आई लव माई ऑडियंस फॉर दैट. उनके प्यार की वजह से ही, उनकी ब्लेसिंग की वजह से आज मैं इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी हूँ. एंड आई थिंक जस्ट ये नहीं कि फिल्म का हिस्सा बनी, बल्कि फिल्म बहुत अच्छी है. ऐसा कंटेंट, इसका जो स्टोरी है अपने आप में बहुत बड़ा हीरोइज्म है उसके अंदर. एक मैसेज है, सोशल मैसेज सब लोगों को कि जो लॉ हम लोगों ने बनाए हैं, जो सिस्टम हम लोगों ने खुद बनाया है, हमें उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करनी पड़ती है जब कुछ गलत होता है हमारे साथ. तो एक अवेकनिंग कॉल है लोगों के लिए कि प्लीज़ जब कुछ गलत होता है तो प्लीज़ अपना वॉइस रेज कीजिए. एक क्वेश्चन है कि एक आम इंसान क्या करेगा जब लॉ मेकर्स ही लॉ ब्रेकर्स बन जाएंगे. तो उसका आंसर हमने इस फिल्म में दिया है देहरादून डायरी के अंदर. होप करती हूँ सबको पसंद आए एंड दे लव द फिल्म. खुश हूँ कि आज बहुत जल्द देहरादून डायरी रिलीज़ होने वाली है 4 जनवरी को. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ द फिल्म. देहरादून डायरी is in a simple one line. It's a story about the common man and the fight against the system, the judicial system, the cops, the corrupt politicians. बहुत सी रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, उन्हें एक बना के हमने इस फिल्म में उसे प्रस्तुत किया है. मैंने देखा नहीं है, बट आई विल से दैट इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग फिल्म. प्रोमो से इट्स लुकिंग गुड एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम. देखिए, हमारी मूवी स्टार कास्ट पे नहीं, हमारी मूवी कंटेंट ही खुद ही एक हीरो है हमारे मूवी का. हमने ये कभी नहीं सोचा. सभी आर्टिस्ट जो भी हैं, अश्विनी कास्तीकर जी हैं, रति जी हैं, नीलिमा जी हैं, नीलिमा जी हैं, ये सब काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं एक्टिंग में. जब भी व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, तो ऐसा नहीं है. हमारी मूवी में कंटेंट ही हमारा हीरो है, हमारी मूवी का कंटेंट ही यूएसपी है. और बहुत रियलिस्टिक, हर कैरेक्टर अपने आप में एक हीरो है. ट्रेंड बदल चुका है. ऐसा नहीं है कि आपको स्टार कास्ट ही चाहिए, कोई बड़ा आर्टिस्ट ही चाहिए. रियलिस्टिक मूवी और छोटी मूवीज भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हमें रियल सिनेमा लोगों को दिखाना है. कोई बात नहीं. सलमान है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है तब यहाँ तक पहुँचे. हम भी उनके साथ साथ एक कदम बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे, उनके साथ ही चलेंगे. हम दबंग से हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है. दबंग अपना आप एक अलग जॉनर की मूवी है, हमारी अलग है. बट ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने बहुत एफर्ट्स करी हैं, इतनी मेहनत करी, यहाँ तक पहुँचे हैं. हमने एक स्टेप रखा है, कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की. दबंग अपनी जगह है, हमारी मूवी अलग जगह है, अलग अलग जोनल है. उसके साथ हम कंपैरिजन जाते ही नहीं बिल्कुल भी. बहुत बहुत शुक्रिया. अगला स्टेप यानी कि नेक्स्ट मूवी की बात फरवरी में अनाउंस करेंगे. आपसे फिर बात करेंगे, दोबारा ज़रूर मिलेंगे. शुरू हो चुका है. फरवरी में आपसे और मुलाकात होगी और आपको जल्दी बताएंगे हम लोग. देहरादून डायरी कहानी है कॉमन मैन की, जो कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करता है, जो सिस्टम उसने खुद बनाया हुआ है, जो कि आमतौर पे होता है, और कैसे उसे कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है अपने गोल तक पहुँचने के लिए. उसी के बारे में ये सारी कहानी है देहरादून डायरी. मेरे किरदार का नाम इसमें है अंशुल, जो कि बॉय नेक्स्ट डोर है, हैप्पी गो लकी, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज है, स्पेशली अपने भाई से. दोस्तों की तरह हैं वो लोग, आपस में हर बातें शेयर करना. कॉलेज में उसे एक लड़की से प्यार होता है और जिसका नाम प्रीति है. एंड किन सर्कमस्टांसेस की वजह से अंशुल का मर्डर हो जाता है और फिर कैसे कॉमन मैन खड़ा होता है अपने राइट्स के लिए और कैसे वो लड़ाई करता है और सिस्टम की बजाता है या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा. देहरादून डायरी एक बहुत ही सनसनीखेज किस्म के हत्याकांड पे जुड़ी हुई कहानी है, जिसके अंदर में किस तरह से जब किसी का मर्डर हो जाता है तो उसे छुपाने के लिए, उसे दबाने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम, पुलिस सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम का कैसा इस्तेमाल किया जाता है और एक कॉमन आदमी को उसके इंसाफ से नकारा जाता है. और किस तरह से कई साल, 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल तक ये लड़ाई चलती है जब एक फैमिली को उनका इंसाफ मिलता है. इसका कारण ये है कि ये फिल्म में जो पॉलिटिक्स हमने दिखाई हुई है वो यूपी की पॉलिटिक्स है, नॉर्थ की पॉलिटिक्स है, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम्स आर नॉट थोड़ा डिफरेंट है बाकी कंट्री से, और उसका क्या असर कॉमन आदमी पे पड़ता है, जस्टिस सिस्टम पे पड़ता है, ये हमने दिखाया. और इसलिए हमने कहानी को देहरादून में पेश किया है. सारी घटनाएं देहरादून में होती है
और देहरादून डायरी इसलिए कहा क्योंकि ये 8 साल तक लिखी गई डायरी है उस कैरेक्टर की जो इस सिस्टम के वजह से सफ़र करा था, जिसे कभी इंसाफ नहीं मिल पाया 8 साल तक।